Hello and welcome to Concepts of Chemistry. Today we'll discuss about acid and base chemistry. So what are acid compounds? According to Arrhenius concept, let us say we took AH. So AH in presence of water in aqueous medium, it will dissociate to H plus and A minus. So acids release H plus in aqueous medium. Release of H plus. According to Bronsted concept, acids Ha will give H plus and A minus. So acids in aqueous medium donate H plus. What are base compounds? According to Arrhenius concept, let's say we took BOH as our base, which in aqueous medium will give B plus and OH minus. So bases in aqueous medium release OH minus. According to Bronsted concept, let us suppose B is having lone pair. So it will donate its lone pair to H plus. So bases according to Bronsted concept are proton acceptor. Proton acceptor. Now we'll see Lewis acid base concept, where B, suppose it's having lone pair and it donates its lone pair to A. So B will be called as lone pair donor. That is Lewis base. And since A has accepted the lone pair, so it will be called as lone pair acceptor. And it will be called as Lewis acid. So its example will be ammonia. Which is having lone pair and it's donating its lone pair to BH3. Since boron is having an empty p orbital, so it can accept its lone pair. Boron can accept lone pair of ammonia in its empty p orbital. So ammonia here is Lewis base and BH3 is Lewis acid. Now we'll understand about donor ability of p and s orbital. Let's say this is nucleus, and so p, so s orbital is having one electron and p orbital is also having one electron present in it. Since s orbital electron is in s orbital experience much more attraction towards nucleus, so p will have more donation ability. Electron present in p will be able to donate its
p orbital will be able to donate electron more quickly in comparison to s, because electron in s is experiencing attraction towards the nucleus. Okay, so this is the thing which we need to remember. Now comes the hybridization concept. That, we have listened about this thing also, that our compounds are sp3 hybridized, sp2 hybridized, sp hybridized. So what is sp3 hybridized? sp3 meaning that that particular compound is having 25% s character present in it, 25% p, similarly 25% p, 25% p. What is sp2? sp2 means 33% s character, 33% p character, and similarly 33% p character. What if we say sp hybridized? That means that particular compound is having 50% s and 50% p character in it. So in all of these you can say that the total will add up to 100%. Okay, if I'm saying that a compound is, if I'm saying simply s, so that means it is having 100% s character. If I'm saying p, that means it's having 100% p character in it. If we discuss about the donor ability, p orbital, which is having 100% p character to it, will be able to donate the most, as we have seen here. Why? Because electron present in s orbital experience much more attraction towards nucleus. Okay, in comparison to electron present in p orbital. So donor ability of pure p will be most. Then comes the sp3, which is having total, this amounts to 75% of p character. Okay, so that's why we have placed sp3. Then sp2 will come. Why? Because if we add up, it will come out to be 66% p character. Then comes the sp, then comes the s. So compound which is having most p character will be able to donate much more quickly. Then comes the sp3 compound, which is sp3 hybridized, that will have the donation tendency. Then comes, sorry, this is sp2, then sp, and subsequently s. We'll discuss some questions based on what we have studied now. So here what is asked, tell the trend of donor ability. Okay,
तो हम जो कार्बोनाइन है हमने जो डिस्कस करा उसके अकॉर्डिंग ये वाले कार्बोनाइन हमारे ये वाला कार्बोनाइन ये कैसे है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये वाला जो है इसमें हम अनायन पहले तो हम ये देखेंगे सब में क्या कॉमन है, सब सारी नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, उसके बाद जो है ये वाला जो है ये हमारा, फिर हम कंपेयर करेंगे अनायंस को कि किसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है। ये वाला जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला क्योंकि इसके साथ डबल बॉन्ड अटैच्ड है तो ये वाला क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड है तो ये क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा डोनेट कौन सा कर पाएगा, ए कंपाउंड की डोनेशन एबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी, फिर बी की, उसके बाद सी की। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, सब में ही कीटोन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो अब हम कैसे कंपेयर करेंगे, इसमें सबसे कम एंगल किस में बन रहा है हम ये देखेंगे, इनर एंगल सबसे कम किस में बन रहा है, सबसे कम जो है इसमें बन रहा है इनर एंगल। ठीक है, इसमें ये इनर एंगल जो है 60 डिग्री है। अब इसमें इनर एंगल जो है वो थोड़ा ज्यादा हो गया 90 डिग्री। ऐसे कर करके बाकियों में भी बढ़ता रहेगा इनर एंगल। तो अगर इनर एंगल अगर इधर सबसे कम है तो इसका आउटर एंगल जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मैं इसमें क्या लिखूंगी, आउटर एंगल पहले मैं लिख रही हूँ। आउटर एंगल मेरे पास सबसे ज्यादा किस में है, ए में सबसे ज्यादा है, फिर बी में, उसके बाद सी में, उसके बाद डी में। ठीक है, अब आउटर एंगल जिसमें सबसे ज्यादा होता है ना उसका एस कैरेक्टर जो है वो उतना ही ज्यादा होता है। तो एक चीज जो हमें ध्यान रखनी होगी कि मोर इज द आउटर एंगल, आउटर एंगल जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एस कैरेक्टर के। और एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा ना तो डोनेशन एबिलिटी जो है वो उतनी ही कम होगी। It is inversely proportional to, S character is inversely proportional to donation ability. ठीक, ये चीज जो है ये हमें ध्यान लर्न रखनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब आउटर एंगल हमने देख लिया कि इसमें सबसे ज्यादा है, तो एस कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा, तो सबसे कम डोनेट ये करेगा। तो हमारा डोनेशन एबिलिटी का ट्रेंड क्या हो गया, सबसे ज्यादा डी जो है वो डोनेट करेगा, फिर सी, फिर बी और उसके बाद ए डोनेट करेगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन में जब हम आ रहे हैं तो हमने क्या देखा कि दोनों में ही हमें ये तो अमीन प्रेजेंट है और ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, साइनाइड जो है वो प्रेजेंट है। अब ये जो है ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इधर हमारे पास ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। और हमें ये बात पता है कि इसके यहाँ पे जो है एस कैरेक्टर जो है वो ज्यादा है, कितना है एस कैरेक्टर, 50% है एस कैरेक्टर। और इधर एस कैरेक्टर कितना है हमारे पास, 25% एस कैरेक्टर है। तो और हमें क्या पता है, यहाँ पे हमने पढ़ा ना एस कैरेक्टर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डोनेशन एबिलिटी के। तो ये जो है कम डोनेट कर पाएगा और ये वाला ज्यादा डोनेट कर पाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा कि डोनेशन एबिलिटी, डोनेशन जो है कौन ज्यादा कर पाएगा, ए ज्यादा कर पाएगा इन कंपैरिजन टू बी। ठीक है, ये आंसर है हमारा इसमें। अब फोर्थ क्वेश्चन पे जब हम आते हैं तो हमने क्या देखा कि इसमें भी हमें डोनेशन एबिलिटी बतानी है।
अब ये वाला नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर तो प्रेजेंट है। अब ये लोन पेयर जो है ये डीलोकलाइज भी हो सकते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ये लोन पेयर इधर शिफ्ट, बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला कैसा है, हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला भी डोनेशन में पार्टिसिपेट करेगा। पर इसके केस में क्या है हमारे पास कि इधर जो है कार्बोनिल का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जो है वो भी इंक्लूड हो जाएगा हमारे पास, और इस वजह से इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो इसके लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और उसके बाद हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, 3CCO माइनस, फिर डबल बॉन्ड NH2 प्लस। ठीक, उसके बाद जो है इसमें, अच्छा, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, 3CCNH। ये वाला नाइट्रोजन के पास अपने लोन पेयर जो है वो भी प्रेजेंट है, प्लस इसके पास ये वाला नाइट्रोजन जो है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो भी आ जाएगा इस पे। डबल बॉन्ड NH2 प्लस। अब जो है हम ये देखेंगे कि ये वाला जो है नाइट्रोजन जो है इसके पास सबसे ज्यादा, इसके पास पहले लोन पेयर भी प्रेजेंट था, और इसको इस वाले नाइट्रोजन ने भी लोन पेयर मतलब रेजोनेंस के थ्रू पार्टिसिपेट लोन पेयर जो है वो दे दिए। तो इसकी डोनेशन टेंडेंसी जो है वो मैक्सिमम हो गई एक ही। उसके बाद जो है, अच्छा, डोनेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, एक ही है। उसके बाद किसकी ज्यादा है, इसके पास तो हम इसमें हमारे पास जो है इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो लग रहा है। ये वाला मिथाइल जो है इसको दे रहा है, और फिर ये CH2 जो है इंटर्न NH2 को दे रहा है। पर इसमें क्या है, इसमें हमारे पास दोनों ही, ये जो है ये 1 डिग्री कंसीडर होगा, पर ये वाला जो है 2 डिग्री कंसीडर होगा। तो 2 डिग्री अमीन जो है उसकी डोनेशन टेंडेंसी जो है वो ज्यादा होगी, तो उसके बाद हमारा C आएगा, क्योंकि इस पे इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस वाले नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे दोनों मिथाइल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपली सिर्फ एक ही साइड से आ रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। C के बाद कौन सा आएगा, B, और लास्ट में कौन सा आएगा, D। अब D लास्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यानी कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वो स्लो डोनेशन होगा इन कंपैरिजन। ठीक है, अब जो है इस क्वेश्चन में हम क्या देखें, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले तो हमें कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें ये देखना है कि दोनों क्वेश्चंस में कॉमन चीज क्या है। कार्बोनिल इधर भी है, इधर भी है, मिथाइल दोनों के पास ही है। इसमें NH2 है, पर इसमें जो है रिंग जो है वो बनी हुई है। अब हमने क्या डिस्कस करा था कि ये इनर एंगल जो है वो इसमें कम है। जब इनर एंगल कम होगा तो आउटर एंगल उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आउटर एंगल उतना ही ज्यादा होगा। आउटर एंगल ज्यादा, आउटर एंगल मोर, यानी कि S कैरेक्टर जो है
वो भी मोर हो जाएगा। एस कैरेक्टर मोर, तो एस ज़्यादा यानी कि डोने, विच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनेशन एबिलिटी। तो इससे हमने क्या कॉन्क्लूड करा कि ये वाला जो है ए की डोनेशन टेंडेंसी जो है या डोनेशन एबिलिटी दैट विल बी मोर देन बी। तो अभी के लिए इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एसिड बेस केमिस्ट्री में और भी मतलब कॉन्सेप्ट जो है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो भी समझाऊंगी। और आपको जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। बाय, सी यू टाइम, अंटिल नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।